Once again, welcome to all parents and students. Today, we are going to study parametric form or parametric function, how to differentiate parametric function. Okay. Now, what does it mean? If x is given in terms of parameter t and y is also given in terms of parameter t, means x is differentiable function of t and y is also differentiable function of t. Okay, so there is no as such relation between x and y directly. तो अगर x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दिया है, पैरामीटर t एज अ वेरिएबल t आप अज्यूम कर लो, और y का वैल्यू भी दिया है इन टर्म्स ऑफ t, मींस x एंड y बोथ आर गिवन इन टर्म्स ऑफ t, बट यू हैव टू फाइंड व्हाट dy by dx. Then we have to use this format. dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. Okay, but the condition is dx by dt should not equal to 0. So in this way we can find out dy by dx. Okay, if x and y are given in terms of parameter t. Okay, it is not necessary that always they will give you parameter t. हमेशा parameter t ही देंगे ऐसा कुछ नहीं है. कभी कभार प्रॉब्लम में वो t की जगह पे m दे सकते हैं. Are you getting it? In place of t, they can give you m. Okay, they can give you n. Okay, so they can change parameter, but most of the times they use parameter t. Okay, so let's start with exercise 3.5. Very easy exercise. Same rules of differentiation we have to apply. Question number 1, we have to just find dy by dx. क्या दिया? x is equal to at square, means x is given in terms of t. Here t is the parameter, a is not a parameter, a is constant. A is constant and t is the parameter. Okay, so x is equal to at square. Now using this you can find out dx by dt, differentiating x with respect to parameter t. So differentiating with respect to t, what you will get? x को differentiate किया with respect to t, तो क्या मिलेगा? dx by dt. अब x का डेरिवेटिव 1 नहीं मिलेगा. Are you getting it? क्यों? क्योंकि आप x को with respect to x differentiate कर रहे हो क्या? नहीं. समझ में आ रहा है ना? अगर आपने x को differentiate किया होता with respect to x, then derivative will be 1. But here you are differentiating x with respect to t, so x का डेरिवेटिव with respect to t क्या आएगा? dx by dt आएगा. समझ में आ रहा है? वो 1 नहीं आएगा. Are you getting it? Now a constant remain as it is. t square पावर, अगर x स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव क्या लिखती है आप? 2x ना, पावर आगे आएगा. तो सेम वे t स्क्वायर ना पावर है ना, तो पावर आगे आएगा ना, तो 2t रेस टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2t इंटू a, 2at. आर यू गेटिंग इट? ओके, दिस इज dx by dt. नाउ y, दे हैव गिवन y इक्वल टू 280. दिस इज द गिवन वैल्यू. प्रॉब्लम में दिया है कि y इक्वल टू 280. अगेन y इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t दिया है ना, बराबर, तो y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, पैरामीटर t. सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, व्हाट यू विल गेट? dy by dt. आर यू गेटिंग इट? डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, you will get dy by dt. Clear? 2a is a constant term, so 2a will remain as it is. डेरिवेटिव ऑफ t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1. क्यों 1 आएगा? समझा ना? क्योंकि t को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो dt अपॉन dt कितना आएगा? 1 आएगा. सो t का डेरिवेटिव 1. सो 2a इंटू 1 दैट इज 2a. क्लियर? तो आपके पास dx by dt का वैल्यू है 280. देन यू हैव dy by dt 2a. बट व्हाट यू हैव टू फाइंड? You have to find dy by dx. So we have a formula for parametric functions. dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. So just put down the values.
dy by dt value 2a, so 2a upon dx by dt 280, so upon 280, 2a will get cancel. So numerator 1, denominator t. So the final answer dy by dx is equal to 1 upon t. Are you getting it? Anything difficult? Difficult लग रहा है आपको? बहुत ही simple है. Okay. So this is the way to find out differentiation in parametric form. Clear? Okay. So let's solve question number 2. It is also pretty easy question. Pretty easy question is given. Question number 2. Same way, same procedure you have to apply. Okay. So the value for x is given. X is equal to 280 square. 280 square. This is the value for x, 280 square. Okay. So once again, what we have to do? Differentiating x with respect to t. Okay. So therefore differentiating with respect to t. So you will get dx by dt is equal to 2a as it is रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है. t स्क्वायर अभी भी किया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t. So 2t into 2a, 2 into 2 4 at. So finally you will get 4at. Okay, this is dx by dt. Now y. Also they have given y is equal to at raised to 4, at raised to 4. So once again differentiating with respect to t, what you will get? dy by dt. a क्या है? कांस्टेंट, तो a एज इट इज रहेगा. t raised to 4 मतलब पावर का फंक्शन आ गया ना. तो पावर में क्या होता है? पावर आगे आता है ना. क्या आएगा फिर? 4 आगे आ गया 4. t का पावर क्या आएगा फिर? 4 minus 1. So 4 minus 1 3. Okay, so a into 4t cube. Okay, that is nothing but 4at cube. Okay, so you got dx by dt 4at, you got dy by dt 4at cube. What do you want? क्या चाहिए आपको? dy by dx. Okay, so write down. So therefore now dy by dx is equal to, what's the formula? dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. So just put down the values. dy by dt, what's the value? 4at cube upon dx by dt, what's the value? 4at. 4at. So 4a will get cancelled. T cube divided by t na. So what will be the answer? T square. So therefore dy by dx is equal to t square. This will be our full and final answer. Clear? Anything difficult? कुछ difficult लग रहा है आपको? बहुत ही simple सा sum है. So let's proceed to question number 3. It is also easy sum. Just formula थोड़ा change करना है. In this sum they have given x is equal to e raised to 3t. X is equal to e raised to 3t. Question number 3. Question number 3. They have given x is equal to e raised to 3t. Okay. So now we have to find dx by dt. Then y. What's the value for y? Y is given as e raised to 4t plus 5. E raised to 4t plus 5. This is y. Okay. Now we have to find out dy by dx. अब हमें find out करना है dy by dx. बहुत ही simple. X is equal to e raised to 3t. What's the formula for e raised to? तो e raised to का डेरिवेटिव क्या आता है? e raised to ही आता है. तो e raised to 3t का क्या आएगा? e raised to 3te आएगा. बराबर. लेकिन ये तो e raised to का हो गया ना. अब यहाँ पे चेन रूल आएगा. क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है. कौन सा दो फंक्शन? एक तो e raised to मतलब ये एक्सपोनेंशियल हो गया, और ये जो पावर में 3t है ना, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा.
तो e रेस टू का डेरिवेटिव e रेस टू ही आएगा, e रेस टू x रहेगा तो डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, तो e रेस टू 3t का डेरिवेटिव e रेस टू 3t हो गया, e रेस टू का काम खत्म। अब पावर में जो 3t है उसका भी तो डेरिवेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ 3t, 3t का डेरिवेटिव कितना आएगा 3, क्यों 3 तो कांस्टेंट है ना एज इट इज, और t का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, समझे कि नहीं समझे, ये 3 कहां से आया समझा गया। ओके, या फिर ऐसे लिखो चाहे तो स्टेप बढ़ाओ, इंटू डी बाई डी टी ऑफ 3t। ओके, अब 3t का डेरिवेटिव कितना आएगा 3, सो फाइनली यू विल गेट 3 e रेस टू 3t, 3 इंटू e रेस टू 3t, दिस इज द वैल्यू फॉर dx by dt, ये हो गया dx by dt का वैल्यू। नाउ व्हाट वी वांट y, y is given as e raised to 4t plus 5, once again differentiating with respect to t, क्या मिलेगा dy by dt, पहले क्या आएगा e raised to, तो e raised to का डेरिवेटिव e raised to ही आता है, सो e raised to 4t plus 5, e raised to 4t plus 5 as it is, ये तो e raised to का हो गया ना, लेकिन जो पावर है उसका भी तो आएगा, इनटू d बाई डी टी, पावर है 4t प्लस 5, इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा, क्लियर है। सो देयरफॉर चाहे तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हम लोग, तो व्हाट यू विल गेट, तो दैट इज इक्वल टू e रेज टू 4t प्लस 5 इंटू, देखो 4 एज इट इज कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस ये 5 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 4 मल्टीप्लाई करके आया ना वेरिएबल, देयरफॉर 4 एज इट इज रहेगा, और वेरिएबल t है, t का डेरिवेटिव 1, तो 4 इंटू 1 प्लस ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल है क्या नहीं है, तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो 4 इंटू 1 4, सो फाइनली यू विल गेट 4 e रेज टू 4t प्लस 5, तो ये है आपका dy बाई डी टी, so you got dx by dt 3 e raised to 3t and dy by dt भी मिल गया आपको, पर चाहिए क्या dy by dx, so therefore dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, now just put down the values, dy by dt का वैल्यू है 4 e raised to 4t plus 5 अपॉन dx by dt का वैल्यू है 3 e रेस टू 3t, बराबर। अब एक थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, कैसे, ये भी e रेस टू है और ये भी e रेस टू है ना, तो दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो मालूम है ना रूल्स ऑफ इंडाइसेस, क्या है रूल्स ऑफ इंडाइसेस, अगर बेस सेम होगा और डिवीजन होगा तो पावर क्या होता है सबट्रैक्ट होता है ना, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू, कहां पे लिखे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4/3 e रेस टू 4t plus 5 minus 3t, so that is nothing but 4/3 e रेस टू 4t minus 3t मतलब t plus 5, फिनिश। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर dy by dx, so dy by dx इक्वल टू 4/3 e रेस टू t plus 5, क्या क्या समझा आपको, ये 4/3 एज इट इज, ये भी e रेस टू है और ये भी e रेस टू है ना, तो डिवीजन है, डिवीजन में पावर क्या होता है सबट्रैक्ट, तो ये 4t प्लस 5 माइनस ये पावर 3t, तो 4t माइनस 3t क्या आएगा t, सो t प्लस 5 e रेस टू t प्लस 5, 4/3 एज इट इज, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 सब क्वेश्चंस थे, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2, इट इज आल्सो ऑफ सिमिलर टाइप, नथिंग डिफरेंट, जस्ट फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Okay, from question number 2 we have to find again dy by dx. Question number 2, find dy by dx and the values are given. Find dy by dx
from that question 1, they have given x is equal to u plus 1 upon u the whole square. This is the value for x. X is given to u plus 1 upon u the whole square. Now, just now I said that don't think that always they will give you parameter as t. बराबर अभी अभी बताया था कि हमेशा पैरामीटर t ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पैरामीटर दिया है उन्होंने. दे हैव गिवन पैरामीटर u. समझा. अब t नहीं दिया है, पैरामीटर क्या दिया अभी, u दिया है. मतलब आपको x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u. हाँ, you have to differentiate x with respect to u. So therefore differentiating with respect to u. तो यहाँ पे जब विथ रिस्पेक्ट टू t किया था तो क्या मिला था, dx by dt मिला था ना. तो अब विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो तो क्या मिलेगा, dx by du. therefore dx by du. Are you getting it? dx by du is equal to, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसे डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट स्क्वायर दिख रहा है. बराबर है. मतलब आप स्क्वायर के बारे में सोचोगे. बराबर. अगर x स्क्वायर होता तो आप डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 2x ना. पावर के बारे में सोचोगे तो ये पावर 2 है तो क्या आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट u प्लस 1 अपॉन u. ये हो गया पावर का डेरिवेटिव. आर यू गेटिंग इट? पावर 2 है ना. मालूम है ना, x रेज टू n रहेगा तो डेरिवेटिव क्या आता है, n x रेज टू n माइनस 1. तो यहाँ पे भी 2 है ना, ब्रैकेट का पावर है तो 2 आगे आएगा और ब्रैकेट का पावर क्या होगा, 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 मतलब 1. तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये 2 इंटू ब्रैकेट, ये आपने स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव लिखा. हो गया स्क्वायर का काम. अब ये स्क्वायर किसका था, ब्रैकेट का था. स्क्वायर इज ऑफ ब्रैकेट. सो नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. बराबर है. सो जस्ट try to take derivative of this bracket. Okay, so into d by du of u plus 1 upon u. So 2 into u plus 1 upon u as it is रहेगा. अब u को विथ रिस्पेक्ट टू u ही कर रहे हो ना डिफरेंशिएट. x को विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो 1 आता था. t को विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो 1 आता था. तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा, 1. Are you getting it? So derivative of u is 1. Now 1 upon u, everybody knows 1 upon x का डेरिवेटिव क्या लिखा था, माइनस 1 upon x स्क्वायर. What is derivative of 1 upon x? 1 upon x का डेरिवेटिव क्या लिखा था, माइनस 1 upon x स्क्वायर. Okay, so what about 1 upon u? So derivative of 1 upon u will be minus 1 upon u square. Finished. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट dx by du. ये है dx by du का आंसर. क्लियर. क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वगैरह सेम करना चाहते हो तो बाद में कर सकते हो आप डिवीजन के टाइम. ये है आपका dx by du. नाउ लेट्स प्रोसीड टू y. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y? ओके, also y is equal to, the value for y is given as 2 raised to u plus 1 upon u. 2 raised to u plus 1 upon u. This is the value for y. Again y in terms of u. बराबर है. तो differentiating y with respect to u. So differentiating with respect to u. What you will get? y with respect to u क्या मिलेगा, dy by dy by du is equal to. अब देखो यहां भी दो फंक्शन है, चेन रूल. फर्स्ट कौन सा फंक्शन है, 2 रेज टू, मतलब ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आ गया 2 रेज टू. तो ऐसा कौन सा वेरिएबल, कौन सा फॉर्मूला है आपके पास जिसमें बेस में वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है ना. था ना ऐसा फॉर्मूला, a raised to x. Base is constant, power is variable. Just look here. Base is constant, 2 is constant, and in power there is parameter variable. Okay, so you have to apply this rule first.
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x? a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है? a रेज टू x log a. a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a. तो 2 रेज टू का क्या आएगा? 2 रेज टू ब्रैकेट log 2. आर यू गेटिंग इट? सो हियर फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई डेरिवेटिव फॉर दिस टर्म 2 रेज टू एक्सपोनेंशियल टर्म. क्या आएगा? 2 रेज टू सेम टर्म u प्लस 1 अपॉन u इंटू u प्लस 1 अपॉन u इंटू log 2. आर यू गेटिंग इट? ये हमने 2 रेज टू का डेरिवेटिव लिख लिया. कि अगर a रेज टू x होता तो आता क्या? a रेज टू x log a. तो 2 रेज टू है तो क्या आएगा? 2 रेज टू ब्रैकेट log 2. ये 2 रेज टू का हो गया था. अब पावर में जो ब्रैकेट है उसका भी तो डेरिवेटिव आएगा. तो इनटू डी बाई डी यू u प्लस 1 अपॉन यू. अब इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव लेना है आपको. अब उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव तो अभी अभी लिया है ना हमने. या देख रहे हो ना? u प्लस 1 अपॉन यू. सेम वे. So here you will get 2 raised to u plus 1 upon u log 2. Bracket का डेरिवेटिव आ गया 1 minus 1 upon u square. So now you got dy by du and dx by du. दोनों मिल गए. But what you want? What do you want? You want dy by dx. Okay. So this is the value for dy by du. So therefore dy by dx is equal to dy by du divided by dx by du. Now just put down the values. दोनों वैल्यू पुट अप कर दो. So dy by du was the value for dy by du. dy by du का वैल्यू है 2 raised to u plus 1 upon u log 2 into 1 minus 1 upon u square divided by dx by du. dx by du का वैल्यू है 2 into u plus 1 upon u into 1 minus 1 by u square. तो ये 1 minus 1 by u square ये ब्रैकेट कॉमन है. वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कैंसल. सो फाइनली you will get dy by dx is equal to न्यूमरेटर में मिलेगा 2 raised to u plus 1 upon u. Okay, 2 raised to u plus 1 upon u which is nothing but y. Okay, log 2 ये न्यूमरेटर में मिला. डिनोमिनेटर में क्या मिला? 2 into u plus 1 upon u. 2 into u plus 1 upon u. This will be your final answer. अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो क्या होगा? ये 2 raised to u plus 1 upon u, 2 raised to u plus 1 upon u which is nothing but y. बराबर. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली y भी लिख सकते हैं. y log 2 ऐसे भी लिख सकते हो. और नीचे 2 into u plus 1 upon u. ओके, तो सिर्फ यहाँ पे आप y log 2 चेंजेस चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो. y log 2 या फिर ये 2 का पावर u plus 1 upon u है. यहाँ पे 2 है ना, मतलब पावर 1 है तो पावर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो या फिर कीप इट एज इट इज. जैसा है वैसे रखा तो भी चल जाएगा. सो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर. आर यू गेटिंग इट? Let's proceed to question number 2, which is also very simple question. Question number 2, they have given x and y. Very simple questions are given. Okay. Okay, let's see. In that question number 2, they have given x is equal to root of 1 plus u square. X is equal to root of, question number 2, root of 1 plus u square. This is the value for x. Very simple. Root of 1 plus u square. So, first of all, we have to think about this root. Are you getting it? Root of bracket, na? So first of all, we have to think about root. So what will be the derivative of root x? Root x का derivative क्या आता है? 1 upon 2 root x. So derivative of this root will be 1 upon 2 root
1 प्लस यू स्क्वायर, ये तो रूट का हो गया ना, अब रूट के अंदर भी है ना 1 प्लस यू स्क्वायर, सो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म ऑल्सो, सो इनटू डी बाय डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके, सो 1 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, u स्क्वायर पावर है ना, क्या आएगा 2u. सो फाइनली व्हाट वी विल गेट, here you will get 1 upon 2 root 1 plus u square, and here you will get 2u. Derivative of 1 is 0. u square पावर आगे आएगा ना, तो क्या आएगा 2u. तो 2u plus 0 मतलब 2u. Now 2 will get cancel. So finally you will get u upon root of 1 plus u square. This is the value for dx by du. Okay, don't write like this, write one below the other. जो भी स्टेप लिखोगे वन बिलो द अदर लिखना, ये ऐसा स्टेप मत लिखना. ओके, सो dx by du, वैल्यू फॉर dx by du विल बी u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर. ओके, नाउ फॉर y, y is given as log of 1 plus u square. y is given as log of 1 plus u square. Once again differentiating with respect to u, dy by du. ओके, तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट लॉग ऑफ ब्रैकेट. बराबर, अगर ये log x होता तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x. तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ब्रैकेट विल बी 1 अपॉन ब्रैकेट. सो 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये आपने log का डेरिवेटिव ले लिया. बराबर है, अब log इस ब्रैकेट का है ना, तो ये ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट है, और यू स्क्वायर का क्या आएगा 2u. तो 2u प्लस 0 दैट इज 2u. सो फाइनली यू विल गेट 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके, सो यू गॉट dx by du, u upon root, and you got dy by du 2u upon bracket 1 plus u square. Now dy by dx is equal to dy by du upon dx by du. Now just substitute the values. dy by du क्या वैल्यू है उसका 2u upon 1 plus u square divided by dx by du. dx by du का वैल्यू क्या है u upon root of 1 plus u square. बराबर, ये डिवीजन है, न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा ना. सो व्हाट यू विल गेट 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इनटू रेसिप्रोकल रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन u. सो u विल गेट कैंसल, और ये दिख रहा है आपको 1 प्लस यू स्क्वायर है, वही यहाँ पे है 1 प्लस यू स्क्वायर, बट ये रूट में है. तो आपको मालूम है ना, अगर 2 है और ऊपर अगर रूट 2 है तो क्या आएगा रूट 2 विल कैंसल इट, एंड हियर यू विल गेट रूट 2. ये तो पता है ना सबको, अगर रूट 2 है और नीचे 2 है तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2 ना. सो रूट 2 विल गेट कैंसल, सो यू विल गेट रूट 2 एज आंसर ना. सो सेम यहाँ पे होगा, ये रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर है और ये 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो ये रूट 1 प्लस यू स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पे रूट आएगा ना, रूट 1 प्लस यू स्क्वायर. हियर यू विल गेट कैंसल. सो व्हाट यू विल गेट एज अ फाइनल आंसर, सो फाइनली यू विल गेट dy by dx. So therefore dy by dx is equal to numerator u cancel 2, this root is cancelled, so numerator 2 divided by root of 1 plus u square. ये समझा ना कैसे, ये 1 प्लस यू स्क्वायर है और ये रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है. ये 1 प्लस यू स्क्वायर मतलब रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस यू स्क्वायर ना, तो एक रूट क्या हो जाएगा कैंसल और एक रूट बाकी रहेगा ना, दैट्स व्हाई वो नीचे आया रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? सो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में दिया है. क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा वर्डिंग चेंज है, so just check it out. Question number 3, what they have asked.
Your solution is very easy, but the question is tricky one. Okay, here they have asked in question number 3, we have to differentiate 5 raised to x with respect to 5 raised to x with respect to log x. This is the question actually. They have given the question what? Differentiate 5 raised to x with respect to log x. This is given question. Differentiate 5 raised to x with respect to log x. Means we have to differentiate this term with respect to log x. Okay, so for that just assume 2 variables. दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल अज्यूम करते हैं हम लोग. कैसे देखो, लेट u और you can take any variable. Let u is equal to 5 raised to x is equal to u and log x is equal to v. इससे होगा क्या, हमने फर्स्ट टर्म के लिए u अज्यूम किया, सेकंड टर्म के लिए v अज्यूम किया. हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म को u ले लिया आपने, अज्यूम किया है, मतलब आपको डिफरेंशिएट u करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म. सेकंड टर्म के लिए क्या लिया आपने, v विथ रिस्पेक्ट टू v. दैट मींस so therefore now we have to differentiate u with respect to v. समझे आपने 5 raised to x के लिए u लेटर यूज किया, log x के लिए v यूज किया, तो आपको डिफरेंशिएट क्या करना था, 5 raised to x जिसके लिए लेटर ले लिया आपने u, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है u विथ रिस्पेक्ट टू log x, बट log x के लिए लेटर v, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब आपको डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v करना है ना. दैट इज नथिंग बट दैट इज टू फाइंड du बाय dv. है कि नहीं है. जब आप बोलते हो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what does it mean? If we have to differentiate y with respect to x, this is nothing but dy by dx na. Differentiating y with respect to x means dy by dx. Differentiating x with respect to t, differentiating x with respect to t, which is nothing but dx by dt. है कि नहीं. जब आप x को with respect to t डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, dx by dt लिखते हो. तो अब यहाँ क्या किया हमने, u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब ही क्या फाइंड आउट करना है, du by dv. आर यू गेटिंग इट. वी हैव टू फाइंड आउट du by dv. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड du by dv? वेरी इजी. u is given in terms of x, v is given in terms of x. So now in this case parameter is x. Okay, so therefore u is equal to 5 raised to x. डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, du बाई dx. अब डायरेक्टली तो du बाई dv मिलेगा नहीं, क्योंकि u का रिलेशन x के साथ है और v का रिलेशन भी x के साथ है. u और v का तो रिलेशन है नहीं. आर यू गेटिंग इट. सो du बाई dx 5 raised to x, कौन सा फॉर्मूला, a raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x log a, तो 5 raised to x का डेरिवेटिव 5 raised to x log 5. Finished. Okay. Now v is equal to log x. Once again differentiating with respect to x, what you will get, dv by dx is equal to log x. log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 upon x. डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x. Okay, what we want du by dv. So therefore du by dv is equal to du by dx divided by dv by dx. Now just put down the values. अब उनका वैल्यूज पुट अप कर दो. du by dx का वैल्यू क्या है, 5 raised to x log 5. So that is nothing but 5 raised to x log 5 divided by dv by dx का वैल्यू 1 upon x 1 upon x. ये जो डिवाइड x है ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई. सो फाइनली यू विल गेट du by dv is equal to
x आगे लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, x into 5 raised to x log 5. This will be your full and final answer. Are you getting it? So differentiating 5 raised to x with respect to log x, you will have this answer, x into 5 raised to x log 5. समझा क्या किया? दोनों के लिए अलग अलग लेटर यूज किया, 5 raised to x के लिए u, log x के लिए v. और फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंशिएट 5 raised to x मतलब u विथ रिस्पेक्ट टू log x मतलब v. तो u को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब ही क्या फाइंड आउट करना है, du by dv. तो du by dv तो डायरेक्टली फाइंड आउट होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि u और v का कोई रिलेशन है नहीं. तो रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है u एंड x, v एंड x. तो u du by dx, v dv by dx. तो du by dx, dv by dx मिला. Now you can find out du by dv. Is that clear? This is all about question number 2. Okay. Now let's start question number 3, where we have to solve. So few more steps are required in question number 3. We have to solve and prove certain expressions. Pretty easy question is given. Question number 3, where we have to solve the following. Okay, from that, number 1, they have given x and y, both values are given. We have to show that or the prove that. Okay, so x is equal to a into 1 minus 1 by t. This is the value for x is given, and also y is given, and we have to show that dy by dx equal to minus 1. We have to, means answer is given, we have to prove that dy by dx equal to minus 1. Pretty easy sum. X is given, just differentiate. Differentiating with respect to t, what you will get, x को with respect to t differentiate किया, क्या मिलेगा, dx by dt. a क्या है, constant, as it is 1 is a constant. तो constant का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. अब आप बोलोगे a कांस्टेंट था, a का क्यों नहीं 0 लिखा, क्योंकि a इस टर्म को मल्टीप्लाई करके आया, दैट्स व्हाई a को सेपरेट किया है हमने, a का डेरिवेटिव नहीं निकाला है. आर यू गेटिंग इट? वी आर गेटिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालते वक्त ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, इनके बीच में माइनस साइन है, मतलब ये कांस्टेंट सेपरेट हुआ. समझ में आ रहा है? वो मल्टीप्लाई करके नहीं आया है. यहाँ पे a क्या है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आया है, दैट्स व्हाई a का डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, वो एज इट इज रखा है. आर यू गेटिंग इट? बट यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 माइनस 1 अपॉन टी. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो 1 अपॉन टी का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. बट ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. कुछ समझ में आ रहा है क्या? 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. 1 अपॉन टी, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. बट ऑलरेडी माइनस साइन इज देयर ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन प्लस. समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है. तो फिर अब ये 0 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर मतलब 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू ए, मतलब क्या आएगा, a अपॉन टी स्क्वायर. ये हो गया आपका dx बाय dt. अब y, नाउ y के लिए उन्होंने दिया वैल्यू a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी. व्हाट अ सिंपल सम. differentiating with respect to t, what you will get, dy by dt. once again a constant as it is, 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. अब माइनस ही आएगा क्योंकि क्या है, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस. तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो ये a 0 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो माइनस 1 इंटू ए क्या आएगा, माइनस a अपॉन टी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाई dt. नाउ यू गॉट dy by dt as well as dx by dt. What do you want? What you have to prove? We have to prove that dy by dx equal to minus 1. Okay.
सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, dy by dt अपॉन dx by dt. पुट डाउन द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है पुट अप कर दो. dy by dt का वैल्यू माइनस a अपॉन टी स्क्वायर और dx by dt का वैल्यू a अपॉन टी स्क्वायर है ना सेम दोनों, तो दोनों कट होगा ना, डिवीजन कैंसिल ना, लेकिन रहेगा क्या, डिवीजन कैंसिल, सेम सेम कैंसिल मतलब डिवीजन 1 और ये माइनस साइन. सो देयरफॉर dy by dx is equal to -1 and this only we have to prove, और यही हमें प्रूव करना था. Hence proved. Finished. कुछ डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल सम, nothing difficult in it. So let's try question number 2. This is also easy sum but little bit lengthy. Question number 2. Okay, in this sum x and y are given and we have to prove dy by dx. Okay, x is given as 4t upon 1 plus t square. This is the value for x. Then y is given and we have to prove that dy by dx is equal to minus 9x upon 4y, minus 9x upon 4y. This we have to prove dy by dx and this is the value for x. Once again x in terms of t, differentiate करेंगे, differentiating x with respect to t, what you will get, dx by dt. ये 4 कांस्टेंट है, ऐसे रखो बाहर. अब यहाँ पे t और 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवीजन है ना, डिवीजन मतलब u अपॉन v. तो u अपॉन v डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिनोमिनेटर फर्स्ट 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर कौन है, t का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना. तो डेरिवेटिव ऑफ t कितना आता है, 1. समझा ना, ये 1 क्यों लिखा है. डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर कौन है, t का डेरिवेटिव लेना है, कितना आया 1, माइनस न्यूमरेटर t इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. आर यू गेटिंग इट. समझा क्या फॉर्मूला आपको, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर t था, t का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है ना 1 प्लस टी स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. फिनिश्ड. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना अब इसको, ये 4 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस टी इंटू 2t, माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. ओके, तो टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कितना आएगा, माइनस टी स्क्वायर. सो फाइनली यू विल गेट, सो देयरफॉर dx by dt is equal to 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square. ये हो गया आपका dx by dt का आंसर, 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square. हो गया. अब y, now y is equal to, y का वैल्यू दिया है 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square, 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square. Once again y in terms of t, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y with respect to t, क्या मिलेगा, dy by dt इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, सेपरेट रखो. अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, u अपॉन v, तो अभी भी क्या u अपॉन v, क्या आएगा पहला, डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर कौन है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का 2t हो गया, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर.
माइनस, अब न्यूमरेटर कौन है, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर, उसका स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 बाहर ही रहेगा, ये 0 माइनस 2t मतलब माइनस 2t दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब बराबर है। फिर यहाँ पे 0 प्लस 2t मतलब 2t इंटू 1 2t, और ये माइनस साइन है ना बाहर, तो क्या आएगा माइनस 2t, फिर 2t इंटू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, और फिर से माइनस है बाहर, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस 2t क्यूब और ये प्लस 2t क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल, बराबर, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसल, तो रहेगा क्या, माइनस 2t मतलब माइनस 4t, वो माइनस 4t और ये 3, 4 3 12, तो डायरेक्टली आंसर ये आएगा। सो व्हाट यू विल गेट, where should I write, so therefore dy by dt you will get minus 12t, क्या आएगा, माइनस 40 इंटू 3 माइनस 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हो गया आपका dy by dt। सो नाउ यू गॉट dx by dt मिल गया, dy by dt, ये सब स्टेप समझा, ओके, सो आई हैव टू क्लियर इट आउट, हाँ, ये सब स्टेप समझा, सो लेट मी क्लियर इट आउट। नाउ आई हैव टू फाइंड व्हाट, अब हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, ओके, सो dy by dx कैसे मिलेगा, so therefore dy by dx is equal to, what's the formula, dy by dt upon dx by dt, सेम फॉर्मूला ना, dy by dx कैसे मिलेगा, dy by dt upon dx by dt, now just substitute the values, वो dy by dt का वैल्यू, ये dx by dt का वैल्यू पुट अप कर दो, so finally you will get dy by dt minus 12t upon 1 plus t square the whole square, okay, dy by dt divided by, okay, so डिवीजन का साइन दिया, डिवाइडेड बाय dx by dt, दिस इज द dx by dt, 4 into 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square। तो डिवीजन का अगर मल्टीप्लीकेशन हो गया तो वो रेसिप्रोकल होगा ना, सो यू विल गेट माइनस 12t अपॉन 1 plus t square the whole square into reciprocal 1 plus t square the whole square divided by 4 into 1 minus t square, बराबर, 1 plus t square the whole square will get cancel, 4 1s are 4 3s are, so what will be the final answer, so you will get finally 1 plus t square, so therefore dy by dx you will get 4 3s are, so minus 3t, these two terms will get cancel and denominator 1 minus t square, this is your equation number 1। so you got dy by dx, okay, but what we want dy by dx equal to minus 9x upon 4y, but here we got dy by dx in terms of t, बराबर, dy by dx का वैल्यू मिला हमें, बट वो t में मिला, जबकि हमें प्रूव दैट में वो x और y में चाहिए ना, तो क्या करते हैं, यहाँ x एंड y एडजस्ट करने में टाइम ज्यादा जाएगा या स्टेप बढ़ेगा, उससे अच्छा ये जो साइड है 9x अपॉन 4y, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम लाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, समझ में आ रहा है, dy by dx का वैल्यू ये नहीं चाहिए, उन्हें वैल्यू चाहिए वो 9x अपॉन 4y, मतलब यहाँ x और y का वैल्यू, ये x y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो ये x और y यहाँ पे एडजस्ट करने में स्टेप बढ़ेगा, उससे अच्छा क्या करेंगे, ये जो साइड है 9x अपॉन 4y वो सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करके उसका आंसर और ये आंसर सेम आया ऐसा मैच करेंगे,
अगर दोनों का आंसर सेम आया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। दिस इज y एंड दिस इज x. So after this, let's try for that side. So here we got LHS, dy by dx. This is dy by dx, LHS we got. Now we have to find this RHS. Now minus 9x upon 4y is equal to minus 9 upon 4 x and y. Just put down the values for x. x का वैल्यू है आपका upon 4y ना, x का वैल्यू 4t upon 1 plus t square. ये हो गया x minus 9x upon 4y. Now put down the value for y. y का वैल्यू क्या दिया था, 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, so minus 9 by 4 x by y. This is the value for x and this is the value for y. So 1 plus t square, 1 plus t square, same denominator now, will get cancelled. So here 3 ones are 3 3s are, so minus 3 by 4, 3 ones are 3 3s are 9, so minus 3 by 4. 1 plus t square, 1 plus t square, cancel. Here numerator 4t, denominator 1 minus t square. Okay, so numerator 4t, denominator 1 minus t square. Now 4 will get cancelled, 4 and 4 will get cancelled. So what you will get, minus 3t upon 1 minus t square. This is equation number 2. Just check equation 1 and equation 2. In equation 1, dy by dx equal to minus 3t upon 1 minus t square. And in equation 2, minus 9x upon 4y. This is also minus 3t upon 1 minus t square. Okay, that means from 1 and 2, these two have the same value. इन दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों सेम. Okay, so therefore you can write, therefore from 1 and 2, what you can write, dy by dx is equal to minus 9x upon 4y. Hence proved. Hence proved. Are you getting it? Clear? So first using x find out dx by dt, then using y find out dy by dt. After getting dx by dt, dy by dt, you have to find dy by dx. dy by dx का वैल्यू मिला minus 3t upon 1 minus t square, इक्वेशन नंबर 1. और हमें चाहिए था ये minus 9x upon 4y. तो ये जो टर्म है इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करो. So value for minus 9x upon 4y is nothing but same, minus 3t upon 1 minus t square. So from 1 and 2, dy by dx and minus 9x upon 4y both are equal. Are you getting it? So the very last sum and very easy sum. Okay, question number 3 from question number 3, very easy sum. The last sum of this exercise, very easy sum. Okay, values for x and y are given and we have to show that dy by dx minus y equal to 0. Okay, x is given as x equal to t log t. This is the value for x. Simple. Differentiating with respect to t. So therefore differentiating with respect to t, what you will get, dx by dt. क्या आएगा dx by dt में, u into v आएगा ना, फर्स्ट टर्म t into सेकेंड टर्म log t. log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t प्लस सेकेंड टर्म log t into फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1. So here tt cancel. So what you will get, dx by dt equal to tt cancel मतलब 1 plus log t into 1 मतलब log t. तो ये हो गया आपका dx by dt 1 plus log t. Okay. Now the term y is given. Now y is given t raised to t. y का वैल्यू दिया है t raised to t. इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ओके, अब आपको मालूम है बेस में भी वेरिएबल
और पावर में भी वेरिएबल। ऐसा जब भी होता है तब हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लॉग अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग अप्लाई करने पे क्या होगा, log y इज इक्वल टू, पावर आगे आता है तो क्या मिलेगा, t log t, अप्लाइंग लॉग, यू विल गेट t log t। और जस्ट चेक इट आउट, t log t, दिस इज t log t एंड दिस इज आल्सो t log t एंड दिस t log t इज वैल्यू फॉर x। समझ में आ रहा है ना। तो लॉग अप्लाई करने पे t log t मिला ना, और ये t log t किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, बराबर। तो इन प्लेस ऑफ t log t यू कैन राइट x ऑल्सो। तो t log t की जगह पे आप x भी लिख सकते हो ना। ओके, सो देयरफॉर log y is equal to x from 1। नाउ स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट, आपको dy by dt चाहिए, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t और x, बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे कि x करेंगे, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट, प्रॉब्लम में क्या चाहिए आपको। वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx minus y equal to 0, this we have to prove, dy by dx minus y equal to 0। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे कि x करेंगे, this is dx by dt, straight away you have got relation between y and x। okay, so if you want dy by dx, straight away you can find out dy by dx na। okay, here in this case no need to differentiate y with respect to t, you can differentiate with respect to x only, directly you can find out here। if you differentiate with respect to x, log y is 1 upon y, log na, so it is 1 upon y, and for y it is dy by dx। okay, and for x derivative of x is 1 because you are differentiating with respect to x na। now ये y यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। so you will get dy by dx is equal to y। अब ये प्लस y यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस। so finally you will get therefore dy by dx minus y equal to 0 and this is only we have to prove, और यही तो हमें प्रूव करना था, hence proved, प्रॉब्लम खत्म। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, you can solve like this also। and if you don't want to solve in this way, क्या किया समझ में आया, क्या किया, log y का वैल्यू आ गया t log t, बराबर। अब t log t की जगह पे हमने क्या पुटअप किया, x। क्यों, क्योंकि देख रहे हो आप t log t का वैल्यू क्या है, x ना, तो वहां पे x पुटअप किया। अब y और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना, तो हमें y को विथ रिस्पेक्ट टू t करने की जरूरत नहीं है ना अभी, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t नहीं करेंगे। तो log y के लिए 1 upon y और y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो dy by dx, और विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है ना, तो x का डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा यहाँ। हाँ, और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म से जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x नहीं लिखो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म से जाना है। ओके, ये एक मेथड समझ में आ गया, ऐसे आंसर आ सकते हैं। नहीं जाना है तो फिर यहां से स्टार्ट। अगर ऐसे नहीं जाना है, पैरामीट्रिक फॉर्म से ही जाना है आपको, तो फिर क्या कर सकते हो, y इक्वल log y इक्वल टू t log t आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। अब विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ t दिया है ना, डिफरेंशिएट। log y के लिए क्या होगा, 1 upon y, और y के लिए क्या होगा, dy by dt, क्योंकि अब विथ रिस्पेक्ट टू t चल रहा है ना, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dt। अब ये t log t अभी तो किया ना भाई, t log t का डिफरेंशिएशन किया ना, सेम होगा u इंटू v। तो फर्स्ट t इंटू log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t प्लस log t इंटू t का डेरिवेटिव 1। तो फिर dy by dt इज इक्वल टू, ये जो y यहाँ पे डिवाइड है वहां पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में
टी टी कैंसिल, क्या आएगा 1 प्लस log t इंटू 1 log t, 1 प्लस log t, ये हो गया आपका dy बाई डी टी। बराबर, आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, यू वांट dy बाई डी एक्स ना, तो dy बाई डी एक्स कैसे मिलता है सबको पता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx by dt. So where should I write? So therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. Just put down the value. dy by dt का वैल्यू y into 1 plus log t और dx by dt का वैल्यू 1 plus log t. dx by dt 1 plus log t. So 1 plus log t will get cancel. So finally you will get dy by dx is equal to y. वो प्लस y यहाँ पे आके माइनस, so you will get dy by dx minus y equal to 0. Hence proved. Finished. Okay. So there are two methods. In previous method we just put t log t is equal to x and differentiate with respect to x. Straight away we got answer. Okay, or but in parametric, if you want to use parametric form, then this is the method using parametric form. Clear? Okay, so here we have completed all 3 questions from exercise 3.5. So we have completed each and every sum from this exercise. Just go through this exercise, solve all the problems once again. Don't just copy, practice them and search for similar sums. ऐसे सिमिलर सम ढूंढो जरा और उन्हें प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, तब आप परफेक्ट बन जाओगे। इज दैट क्लियर? ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।